Hello students, welcome class 11. Students, we were doing chapter number 5, if you remember, and I had taught you how to make accounting equation. We had done one example of accounting equation, and today we'll start the practical problems which were given at the back of your book, that is T.S. Graver, and we'll start from question number 3. Okay. So let's read question number 3. What is question number 3 is, show the effect of the following transactions in the accounting equation. Started business with cash 50,000. He has started business with cash 50,000. Salaries paid 2,000. Wages outstanding 200. Interest due but not paid 100. Rent paid in advance 150. Okay, now if we see started business with cash 50,000, that means he started business with cash 50,000. वो जब उसने business start किया तो वो इतनी capital लेकर आया, ठीक है, business में 50,000. फिर उसने salaries pay की 2,000. Then wages outstanding. What are wages outstanding? Means he still has to pay the wages he has not paid. So it is his liability. Wages outstanding है, मतलब due है payment के लिए, ठीक है. तो ही हैज़ नॉट पेड वेजेस, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गई है. दैट मीन्स इट इज़ हिज लाइबिलिटी. उसको पे करनी है पर अभी तक उसने पे नहीं की है, तो इट इज़ हिज लाइबिलिटी, राइट. देन इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. इंटरेस्ट ड्यू है पर उसने पे नहीं किया है. दैट मीन्स इंटरेस्ट भी आउटस्टैंडिंग हो गया है. इट इज़ ड्यू बट नॉट पेड. उसने पे नहीं किया. दैट मीन्स वेजेस आर ऑल्सो आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इज ऑल्सो आउटस्टैंडिंग. बोथ आर लाइबिलिटीज, राइट. Then he says कि rent paid in advance 150. rent paid in advance, जो rent था उसने advance में पे किया. जितने भी expenses हम advance में पे करते हैं, they are our current assets, ठीक है, वो हमारे current assets हो जाते हैं. तो it is our current asset. prepaid rent है ये, ठीक है. paid in advance, that means prepaid rent. Okay. So now what you have to do is you have to make a table like this. We are doing chapter 5 accounting equation, question number 3. आप टेबल बनाओगे, हमेशा इसी तरह से आप क्वेश्चन करोगे. सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. स्टूडेंट्स इन अकाउंट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ प्रॉपर टेबल ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट. जो भी आप अकाउंट बना रहे हो, जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, उसका फॉर्मेट पूरा प्रॉपर बनाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टेबल ऑफ इन द क्वेश्चन, ठीक है. यू हैव मार्क्स फॉर दैट ऑल्सो. सो नाउ हाउ यू विल गो अबाउट इट. I would advise, if you just do not watch this video, you stick with a paper and a pen and start doing the question with me only right here. अभी अपने वीडियो पॉज करो, अपना रजिस्टर लेकर आओ, पेन लेकर आओ एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डूइंग. क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000. ओके, started business with cash 50,000. that means first हम डालेंगे, ठीक है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, started business with cash, ठीक है. कैश से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, यानी कि यहाँ पर आप कैश लिखोगे. एसेट कौन सा आपका इंक्रीज हो गया, कैश आया हमारे पास 50,000. ओके, देन कैपिटल इंक्रीज हो गया 50,000, ठीक है. कैश आया हमारे पास, जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश आया एंड देन कैपिटल आया, ठीक है. LHS इज इक्वल टू RHS, हमारे दोनों साइड्स इक्वल है, राइट. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट. What is the next entry? Salaries paid 2,000. Salary पे किया उसने 2,000. ओके, तो हम सेकेंड नंबर डालेंगे. Salaries paid
अब सैलरी पे किया है तो ऑब्वियसली कैश गया मेरे पास से, तो 2000 माइनस हुआ, ठीक है। देन सैलरीज इज एन एक्सपेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था दैट ऑल द रिवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर डिडक्टेड फ्रॉम, revenues are added and expenses are deducted from the capital. revenues और expenses सब capital में आते हैं, ठीक है। they are added, revenues are added and expenses are deducted from the capital. So 2000 minus होगा, okay. After this, what is the third transaction? Wages outstanding 200. Wages outstanding, we'll write here wages outstanding, ठीक है, पूरा लिखना outstanding. wages outstanding is, मैंने क्या बताया था, liability है हमारी, it is a liability. तो liability है, यहाँ पे हम head बनाएंगे, यहाँ पे एक wages outstanding, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा हमारा $200. वेजेस आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई और यहाँ पर एक्सपेंस है तो 200 डिडक्ट होगा, ओके। देन ही सेज इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड. इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट paid. Interest due but not paid. Again, it is a new head. Interest outstanding. Interest outstanding increase हुआ, outstanding increase आ गया हमारा, ठीक है। कितना है, 100. एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस होगा. इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इज एन एक्सपेंस, कैपिटल में से लेस होगा. देन लास्ट ट्रांजैक्शन इज रेंट पेड इन एडवांस. रेंट पेड in advance. Rent paid in advance. How much it is? 150. मैंने क्या बताया था? It is a current asset. Why it is a current asset? Because हमने पहले प्रीपे कर दिया है. So prepaid rent is an current asset. 150. रिवेन्यू है, एक्सपेंस है, सॉरी ये हमारा प्रीपेड रेंट हमारा करंट एसेट है, पर मैंने प्रीपे किया होगा तो यानी कैश गया मेरे पास से, ठीक है. तो कैश मेरे पास से माइनस होगा 150 और प्रीपेड रेंट इंक्रीज होगा. तो अब यहाँ पे 150 प्लस हो रहा है, 150 माइनस हो रहा है, तो इफेक्ट इज 0, यहाँ भी दोनों बैलेंस हो रहा है. देन यहाँ पे प्लस 100 माइनस 100, इफेक्ट इज नील. यहाँ प्लस 200 माइनस 200, द इफेक्ट इज नील. हियर माइनस 200, हियर ऑल्सो माइनस 200, सो बोथ द साइड्स आर इक्वल. नाउ विल डू द टोटल. अब हम अगर इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 50,000 minus 2000 minus 150. It is 47,850. 150 here, 200 plus 100 plus 2 और 3, 2300 माइनस होंगे 50,000 में से, तो इट इज 47,700. ठीक है. Now if we total this side and this side, it should come equal. So 47
850 plus 150 comes out to 48,000 और यहाँ का टोटल भी कर लेते हैं। सो इक्वल है हमारा टोटल 48,000। ठीक है, ये हमारा टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए, द एसेट साइड्स एंड द लायबिलिटीज एंड द कैपिटल साइड। ठीक है, with this our question number 3 is complete. Now let's start with question number 4. Okay, let's start with question number 4. Make a table. Question number 4 is, what will be the effect of the following on the accounting equation? Harish started business with cash 18,000, purchased goods for cash 5,000 and on credit 2,000. He started business with cash 18,000, तो 18,000 से cash increase होगा और capital increase होगी. Then purchased goods for cash 5,000 and on credit 2,000. Cash में उसने खरीदे goods 5,000 पर और credit पर खरीदे 2,000. Then sold goods for cash 4,000, costing 2,400. 4,000 के goods थे जो उसने cash में खरीदे and they were costing 2,400. 2,400 उनकी cost थी. Rent paid 100,000 and rent outstanding 200. Rent pay किया जो उसने वो 1,000 था और जो अभी तक outstanding है that is 200. ठीक है, so let's start question number 4. So what is the first transaction? Harish started business. Harish started business, that means cash आया हमारे पास 18,000 plus 18,000 here also. ठीक है, दोनों तरफ equal हो गया, here also 18,000, here also 18,000. So now what is the second transaction? Second transaction क्या है? Purchased goods for cash 5,000 and on credit 2,000. Okay. Purchased goods on cash and on credit. गुड्स हमने कैश पर भी खरीदे, क्रेडिट पे भी खरीदे. जो कैश पे खरीदे वो कितने थे? 5,000. दैट मीन्स कैश मेरे पास से गया 5,000. ठीक है, ब्रैकेट में करने का मतलब माइनस की वैल्यू है. ठीक है, कैश मेरे पास से गया. देन क्रेडिट पर खरीदे 2,000. दैट मीन्स यहाँ पर मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 2,000. ठीक है, नाउ व्हाट? फिर 5,000 के गुड्स मेरे पास कैश में आए और 2,000 के गुड्स मेरे पास क्रेडिट में आए. तो यानी मेरे पास स्टॉक में कितना आ गया गुड्स? 7,000 है ना. तो गुड्स मेरे पास स्टॉक मेरा इंक्रीज हो गया. स्टॉक मेरा इंक्रीज कितना हुआ? 7,000. ठीक है, अब यहाँ पे आप अपना राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आप देखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पे इफेक्ट आ रहा है 2,000, यहाँ पे 2,000 इक्वल है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड ट्रांजैक्शन. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग ₹2,400. सोल्ड गुड्स फॉर कैश. गुड्स सोल्ड किए हमने कैश पर कितने के? 4,000 के, यानी 4,000 मेरे पास कैश आया. ठीक है, अब कॉस्टिंग कितनी थी उसकी? कॉस्टिंग थी 2,400, यानी 2,400 के गुड्स मेरे पास से चले गए, तो माइनस होगा. नाउ प्रॉफिट मुझे कितना हुआ? 4,000 माइनस 2,400, 1,600 का मुझे प्रॉफिट हुआ. तो प्रॉफिट विल बी एडेड. ओके, profit will be added here.
Then what is the fourth transaction? Rent paid 1000 and rent outstanding. Rent paid and rent outstanding. तो रेंट पेड जो है, मैंने जितना रेंट पे कर दिया 1000 मेरे पास से चला गया, है ना, एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी लेस होगा, ठीक है। देन रेंट आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, इट इज अ लायबिलिटी बिकॉज आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कितना था 200, अगेन इट इज एन एक्सपेंस, रेंट आउटस्टैंडिंग भी एक्सपेंस है तो कैपिटल में से लेस होगा, ठीक है, राइट। नाउ वी हैव टू टोटल इट, अब हम इसका टोटल करेंगे, 18 + 4 22, 16,000, 4,600, 2,200, 18,400. Okay. Now we have to double check that our question is correct or not. तो ये यहाँ का टोटल कितना होगा, 6, 16 and 4 20, 20,000 equal है, okay. So our question is correct. Now coming to the next question. We have done question number 3 and 4. I want you all to do question number 1 and 2 on your own. Then question number 5, 6 and 7. 5, 6 and 7 do it on your own. ठीक है, 1, 2, 5, 6 and 7. I'm taking right now question number 8. ठीक है, I'm taking question number 6 instead of 8 because 6 में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए भी वो कह रहे हैं, so I'll teach you how to make balance sheet also. Okay, so I'm taking question number 6. What you have to do is question number 1, 2, 5 and 7 you have to do it on your own. And question number 7 में आपको सिर्फ इतना देखना है कि sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000, both at a profit of 20%. जो goods की है आपको कॉस्टिंग दी हुई है, यानी कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, और सोल्ड गुड्स हमने क्रेडिट पे सोल्ड किए, यानी हमारे एसेट्स में डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी आप ये क्वेश्चन कर पाते हो या नहीं, अदरवाइज आई टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, ठीक है, तो रीचेक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, यानी क्रेडिट में हमने गुड्स सोल्ड किए हैं, दैट मीन्स एसेट्स में आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे, और उसकी आपकी सेलिंग प्राइस आपको निकालने के लिए उसको अपने वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा दैट 20% आपने उस पर प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है, और वो कैपिटल में ऐड होगा, 20% आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, सर ये कॉस्टिंग जो है ये आपकी स्टॉक में से डिक्रीज हो जाएगी। So let's start question number 6. Question number 6 में he is saying Ajit started business with cash 20,000. He purchased furniture for 2,000. He paid rent on rent of 200. Purchased goods on credit 3,000. He sold goods cost price 2,000 for rupees 5,000 on cash. So let's start question number 6. First, Ajit started business. That means cash increase होगा आपका with
20,000, and here capital will increase by 20,000. Okay. Then second transaction is purchased furniture for 2,000. Purchased furniture. Furniture is an asset? Yes or no? Furniture is an asset. So furniture asset, 2,000 का फर्नीचर एसेट इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स मैंने कैश दिया होगा, तो 2,000 मेरा कैश डिक्रीज भी होगा और 2,000 फर्नीचर ऐड होगा, राइट? देन थर्ड, ही पेड रेंट ऑफ 200. रेंट पेड, रेंट पेड यानी कैश में से 200 लेस हुआ, एंड एक्सपेंस है, रिवेन्यू में से भी एक्सपेंस है तो कैपिटल में से भी 200 लेस हुआ. ओके, नाउ फोर्थ एंट्री, he purchased goods on credit 3,000. Purchased goods on credit. Purchased goods on credit. क्रेडिट पर हमने गुड्स खरीदे, यानी कि 3,000, यानी कि हमारे पास स्टॉक इंक्रीज हुआ ऑफ 3,000, एंड मेरे पास क्रेडिट पे खरीदे यानी मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए 3,000, राइट? Fifth entry is he sold goods. Sold goods. कॉस्ट प्राइस कितनी थी, यानी स्टॉक में से आप इन लेस कर दोगे, कॉस्ट प्राइस थी 2,000 और 5,000 में मैंने गुड्स सोल्ड किए और इन कैश, तो 5,000 मेरे पास आ गया. दैट मीन्स इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5,000 माइनस 2,000 is my profit, so 3,000 is my profit. Okay, now if we total look at the balance, ये हमारा आता है अराउंड 25,000 में से 22,800 is the total. 2,000, then 3 and 2 1,000, 3,000 plus 23 22,800. ओके, क्लियरली नजर ही आ रहा है हमें, बैलेंस हो रहा है. नाउ आई टीच यू अबाउट हाउ टू मेक द बैलेंस शीट. हाउ टू मेक द बैलेंस शीट. First we'll make the format of balance sheet. What is a balance sheet, students? Balance sheet is a statement in which we show the assets and liabilities. ठीक है, assets and liabilities of the business. Balance sheet में हम अपने business की assets and liabilities show करते हैं. ठीक है, we show the assets and liabilities of the business, and it is very important that our balance sheet should match. The asset side should always match with the liability side of the balance sheet. Okay, assets should always match with the balance sheet of the assets should match with the should match with the liabilities of the balance sheet. Let's start it. Where's my pencil? But it is very important to make your accounts neat and clean. आपके accounts बिल्कुल neat and clean बनने चाहिए. ठीक है, lines should be proper. और ये habit शुरू से डालोगे
तभी बढ़ेगी अगर गंदे ढंग से अपने रजिस्टर्स मेंटेन करोगे तो मुश्किल हो जाएगी। सो बैलेंस शीट एज बैलेंस शीट ऑफ अजीत, अजीत की बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एज ऑन, अगर हमें डेट दी होती तो हम यहाँ डेट लिखते या ईयर दिया होता, ठीक है, हमें क्वेश्चन में नथिंग इज गिवन। सो बैलेंस शीट ऑफ अजीत एज ऑन हमेशा हम लिखते हैं ऑन द टॉप ऑफ द बैलेंस शीट, दिस साइड इज द लाइबिलिटी साइड, this is the amount, this is the asset side and this is the amounts column, ठीक है, understood? This is the liability side, amount, asset side and amount, ठीक है। अब assets में हमारे क्या क्या आते हैं, कैश आता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरीज या प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल दोज थिंग्स, स्टॉक्स, डेटर्स, ये सारे हमारे assets हैं। लाइबिलिटीज में क्या क्या, जो आपने बेसिक टर्म अकाउंटिंग टर्म्स में सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ऑल दोज एसेट्स में जितने जितने टर्म्स पढ़े थे। लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, कैपिटल आएगी, क्रेडिटर्स आएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, लोन्स आएंगे, ये सारे हमारी लाइबिलिटीज हैं। ओके, सो हियर हमारे पास अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कैश आया है, कैश इज द एसेट 22,800, फर्नीचर एसेट्स है, ये हमारा एसेट कॉलम है, तो फर्नीचर 2000, स्टॉक 1000, देन ऑन द लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 3000, कैपिटल 22,800, ठीक है। सो our balance sheet is tally 25,800 on the liability side, 25,800 on the asset side, ठीक है। बस हमें ये सारे अमाउंट्स लेकर के यहाँ एसेट में लिखने हैं, ये सारे अमाउंट्स लिख के हमें लाइबिलिटीज में लिखने हैं, our balance sheet will be formed. Okay, so this was our question number 6. I hope the session was clear to you, and you know what I have given you the homework, right? So do your homework and upload it on the portal. Stay home, stay safe. Okay, so goodbye.